کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں سب کچھ بکھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جس چیز کی خواہش کی وہ نہیں ملی، جس خواب کو سالوں تک سینے سے لگایا وہ چکنا چور ہو گیا۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور نکل جائیں، کیونکہ ہر دروازہ بند ہوتا ہے، ہر راستہ ناممکن لگتا ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب زندگی کے بوجھ ہمیں تھکا دیتے ہیں، جب لوگ ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں، جب اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص محبت خاموشی سے ہمارے قریب آتی ہے۔ یہ محبت شور نہیں مچاتی، لیکن اگر غور کریں تو اس کی نشانیاں ہمیں نظر آنے لگتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 4 نشانیوں پر بات کریں گے جو اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خاموش محبت کر رہا ہوتا ہے۔ اور پہلی نشانی ایسی ہے کہ شاید اپنے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ کیفیت آنا شروع ہو جائے کہ دنیا کی رونقیں، شہرت، دولت، لوگوں کی باتیں، ہر چیز بے معنی لگنے لگے، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی محبت کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب دنیا کی چیزوں میں دل نہ لگے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہو رہے ہیں، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے دھوکے سے نکال کر اپنی قربت کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے اور اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ نشانیاں ہر کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دنیا کی چیزیں آپ کے دل کو اب پہلے جیسی خوشی نہیں دیتی، تو ہوشیار ہو جائیے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے۔ وہ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ اور سنو، اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ مشکلات، پریشانیاں، دنیا کے دھوکے سب اپنی جگہ، مگر جب آپ اللہ کے حضور جھکتے ہیں تو اندر ایک عجب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایسا سکون جو کسی انسان کی بات سے نہیں ملتا، ایسا اطمینان جو کسی چیز کے حاصل ہونے سے نہیں آتا، بلکہ صرف سجدے میں آتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کی خاموش محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے کہ وہ خود بخود اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہر درد کا علاج اللہ کے ذکر میں نظر آنے لگتا ہے، ہر بے چینی کا حل سجدے میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوتا ہے، میرے بندے، میں تیرے قریب ہوں، تو صرف میری طرف آ جا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، جب کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں ہوتا، تو اچانک دل کرتا ہے کہ بس سجدے میں گر جائیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک خاص اشارہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صرف اس سے مانگے، صرف اسی کے سامنے جھکے۔ سنو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ زندگی کے مسائل میں الجھ کر دل بے چین ہو جائے، ہر دروازہ بند محسوس ہو،
कोई सुनने वाला ना हो, कोई सहारा नजर ना आए, और फिर अचानक दिल में एक बेइख्तियार सा एहसास जागे और जुबान से अल्फाज ना निकल सके मगर आंखों से आंसू जारी हो जाएं। ये कोई आम लम्हा नहीं होता, ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदे के दिल को नर्म कर रहा होता है। अल्लाह जब किसी से खामोश मोहब्बत करता है तो इसके दिल में दुआ की तड़प डाल देता है, ऐसी तड़प जो आम नहीं होती, ऐसी दुआ जो सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकलती है। ये वो मकाम होता है जहां बंदा सिर्फ रस्मी अल्फाज अदा नहीं करता बल्कि अल्लाह से इस तरह मांगता है जैसे कोई बच्चा अपनी मां से लिपट कर जिद करता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा इससे टूट कर मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए और सब कुछ इसी पर छोड़ दे। वो चाहता है कि बंदा उसके दर पर आए और इतना करीब आ जाए कि इसके दिल में कोई और उम्मीद बाकी ना रहे सिवाय अल्लाह की उम्मीद के। ये अल्लाह की वो खास मोहब्बत होती है जिसके जरिए वो बंदे के दिल की सख्ती को खत्म कर देता है। जब दिल नर्म हो जाए, आंखों में नमी आ जाए और जुबान से बस यही निकले कि आ अल्लाह, बस तो ही मेरा वाहिद सहारा है, तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला इस लम्हे हमें खुद से करीब कर रहा है। ये वो दुआ होती है जो अर्श हिला देती है। ये वो आंसू होते हैं जो अल्लाह को महबूब होते हैं। और सुनो, अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो इसके दिल में अपनी तरफ रुजू करने की शिद्दत डाल देता है। यही वजह है कि जब कोई बंदा अल्लाह से मांगने लगता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की मोहताजी से निकलकर सिर्फ अल्लाह का मोहताज बन जाता है। जब कोई दुआ में डूबकर अल्लाह से कहता है आ अल्लाह, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं, तो अल्लाह ताला जवाब देता है ए मेरे बंदे, मैं तेरे करीब हूं और मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। यही अल्लाह की खामोश मोहब्बत की तीसरी निशानी है। लेकिन क्या अब जानते हो, एक और निशानी ऐसी है जो अल्लाह के मोहब्बत करने का सबसे बड़ा इशारा है। तो सुनो, ये वो मकाम है जहां आप समझने लगते हैं कि अल्लाह की खामोश मोहब्बत सिर्फ आजमाइशों और मुश्किलात के जरिए नहीं आती, बल्कि ये हमें वो अंदरूनी ताकत देती है जो हमें हर हाल में खुश रहने की तौफीक देती है। अल्लाह जब अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो इसे जिंदगी के हर लम्हे में सब्र की नेमत देता है। ये सब्र इंसान की जिंदगी को नया रुख देता है। वो मायूसियों में भी उम्मीद की किरण देखने लगता है। वो मुश्किलात को अल्लाह का इम्तिहान समझकर बर्दाश्त करता है और यकीन रखता है कि हर तकलीफ के बाद अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई खैर जरूर आती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, तुम्हें जरूर आजमाएंगे तुम्हारे माल और जानों में कमी करके, और तुम्हें जरूर सुनोगे इन लोगों से जो तुमसे पहले किताब दिए गए हैं और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी इज़ाएं, और तुम उनके सब्र के साथ उन्हें खुशखबरी दे दो। ये आयत हमें बताती है कि आजमाइशें और तकलीफें हर इंसान की तकदीर का हिस्सा है, लेकिन वो जो सब्र का दामन थाम कर अल्लाह की रजा के लिए अपने रास्ते पर चलते हैं, उन्हें इन आजमाइशों के नतीजे में अल्लाह की खुशनुदी और इनाम मिलता है। याद रखो, जब आप अल्लाह की रजा के लिए मुश्किलात का सामना करते हैं, जब आपका दिल अल्लाह के सामने झुक जाता है और जब आप अल्लाह की तकदीर पर राजी हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह की मदद आपके साथ होती है। वो आपको एक ऐसी ताकत अता करता है कि आपको
किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता। आपका दिल सुकून में होता है क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह आपके साथ है। ये वो वक्त होता है जब इंसान का दिल अल्लाह पर इतना भरोसा करता है कि वो ये समझने लगता है कि जिंदगी में कोई भी वाकया अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। अल्लाह की मोहब्बत में एक खास कुव्वत होती है जो बंदे को दुनिया की सबसे बड़ी परेशानियों से बचा लाती है। वो जितना अल्लाह पर भरोसा करता है इतना ही अल्लाह की मदद इसके करीब होती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और तुम जो अल्लाह पर भरोसा करते हो वो तुम्हारे लिए काफी है। ये आयत हमें ये सिखाती है कि जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो अल्लाह हम पर अपनी मदद नाजिल करता है और हम दुनिया की तमाम मुश्किलात और परेशानियों को बर्दाश्त करने के काबिल बन जाते हैं। जब अल्लाह पर एतमाद होता है तो हमें कभी खौफ और बेसुकूनी का सामना नहीं होता, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ होता है और हम जो भी फैसला करते हैं इस पर हमें इसका ईमान होता है कि ये अल्लाह की मर्जी से ही होगा। ये वो लम्हा होता है जब बंदा अल्लाह के फैसलों पर यकीन करने लगता है और उसका दिल होता है। याद रखें, अल्लाह हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे हालात कैसे भी हों। इसकी मदद हमेशा हमारे करीब होती है जब तक हम इस पर ईमान रखते हैं और सब्र का दामन थामे रखते हैं। अल्लाह हमें अपनी रहनुमाई, सुकून और बरकत से नवाजेगा।